Once again, good morning to all of you. In our previous class, I taught you the very simple topic singular to plural. How to make singular to plural. Once again, welcome to my lingua class 8 5985. In our previous class, you have given us token of love. I feel very happy. Your view, your like, and whatever you subscribe my channel, I feel very happy. Now today, the very important topic I have taken in that Mahilingua classes, that topic, sentence and its type. Dear student, that is very simple topic. As you know, this topic is very simple. From when you start the beginning, on that time you have to study sentence and its type. But my motive is which type of topic I have to take for the improvement of the student. Then I realized, as in our Bihar, UP, MP, the students are very weak in English, especially in grammar. That's why I have taken this topic. The simple things I will explain. There are so many books in the market. मार्केट में बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है. आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे. लेकिन हम लोगों को ग्रामर में पीएचडी नहीं करनी है. सपोज दैट कि मैंने सेंटेंस पढ़ लिया और यहाँ पर मुरेठा बांध लिया लाठी लेके, सेंटेंस और यहाँ माथा पर लिखा हुआ है सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस नहीं पढ़ना है. सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट पर्पस? According to your examination point of view from the class 6, 7, 8, 9, 10 and in other competitive examination. That's why I have taken this topic, because that is the very important part of our grammar. One important part, and that is the hot cake of in your question paper. Question paper का ये hot cake है. क्या? Narration, dialogue writing, narration. और नारेशन विदाउट सेंटेंस तुम पढ़ ही नहीं सकते हो. इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि सर नारेशन हमें समझ में नहीं आता है. नारेशन मींस स्पीच, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो टुडे वी विल स्टार्ट सेंटेंस एंड इट्स टाइप, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट नारेशन. क्योंकि सेंटेंस को बिना पढ़ाए हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं. तो देखिए सेंटेंस एंड इट्स टाइप. नाउ यू सी नेक्स्ट, द वेरी सिंपल वे यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा. हम लोग सिंपल वे में सेंटेंस को पढ़ेंगे. आखिर सेंटेंस है क्या? डियर स्टूडेंट, सेंटेंस, meaning of the sentence means, first of all I just mentioned some example. Ram reads a book. Ram reads a book. That is complete meaning. इस सेंटेंस में एक राम है जो क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का. reads verb and a book object. मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा इन अदर क्लास कि कैसे तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करोगे. मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड, राम रीड्स अ बुक. राम किताब पढ़ता है. राम रीड्स अ बुक, कंप्लीट मीनिंग. सौम्या ईट्स अ मैंगो. दैट इज, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग. अगेन, रम्या ईट्स अ कार. The structure is correct, but the meaning is not a complete meaning. That's why this is not a called sentence. इसको हम लोग sentence नहीं बोलेंगे. क्यों sentence नहीं बोलेंगे? क्योंकि ग्रामेटिकली
ये सही है, लेकिन मीनिंग इसका सही नहीं है। Therefore, a sentence is a group of words. Soumya eats a mango. That is a group of words, and in that group of words put together in a certain order, giving a complete sense or meaning is called sentence. Write down कर लेना, इसको राइट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये हमारा एकदम बिगिनिंग क्लास चल रहा है, आप इसको जरूर देखिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, क्योंकि मैं इस छुट्टी का यूटिलाइजेशन मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो, बच्चे घर में भी पढ़ें और ये बेसिक चीजें बच्चे नहीं जानते, हम लोग डिस्कस करेंगे। यू आल्सो रियलाइज कि हाउ शैल इनकलकेट द मेन बेसिक पॉइंट इन द ग्रामर। तो हमने सेंटेंस में क्या सीखा कि सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड एंड इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Here also, Ramya eats a car. Subject, verb, and object is there, but meaning is not there. That's why it has not a complete meaning. Dear students, for the sentence, the meaning is very necessary. Without meaning, it is very difficult. देखो मैंने नोट में यहाँ लिखा है, for narration the topic sentence is very important. नारेशन पार्ट के लिए ये हमारा टॉपिक बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस का when we go through the type of sentence, तो नारेशन में अगर तुम पूरे टाइप को पढ़ लिए, तुम्हारा नारेशन पार्ट फिनिश। That's why in sentence नारेशन पढ़ने के लिए सेंटेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ये बेसिक चीज है। That's why I again in our next slide what I am going to present here, narration part, and that one is type of sentence. Pen down, please pen down this one. Type of sentence. As you know, it is a basic concept for narration. Here I also mentioned. It is a basic concept for narration. Types of sentence. The first type, assertive sentence. लिखते चलो. Then interrogative sentence. Then imperative sentence. Then objective sentence. And then exclamatory sentence. 5 types. 5 types हमको पढ़ना है और 5 टाइप्स नरेशन में भी पढ़ना है। That's why that class is the basic class of narration. यहाँ से narration बिना सेंटेंस जाने अगर तुम narration पढ़ोगे, you are not able to understand anything. That's why assertive, interrogative, imperative, objective and exclamatory. Now the question is, how you know this sentence is assertive sentence? How you know this one is interrogative, imperative, objective and exclamatory? That is a big question. Then one by one we go through this type of the sentence. Then the first one is, I explain the first one. अब देखो मैंने first one को explain किया है. That is what? The first one is assertive sentence. It is also called declarative sentence, declaration. Okay. Assertive statement. That is a sentence that makes a statement or declaration is called assertive sentence. My dear, always remember. किसी भी सेंटेंस का no need to recall the definition of the sentence. कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन याद करने का। कि हम डेफिनेशन याद करें, समझो, ट्राई करो। ये 5 टाइप है। उसका पहला है assertive, स्वीकारात्मक। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक सेंटेंस।
A sentence that make a statement or declaration is called an assertive sentence. For example, Ramya reads a book. The sentence starts with Ramya, ends with full stop. Okay, again, Tanmay is not playing cricket, ends with full stop, starts with subject. I read a book, ये भी बोल सकते हैं I read a book. और हमारे बच्चे जानते हैं कि मेरा द बेस्ट वन एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल बोलता हूँ क्या, अभी आम का मौसम है, आई ईट अ मैंगो. देखो सेंटेंस स्टार्ट्स विथ आई, सब्जेक्ट ends with full stop. Why I am focusing on subject and full stop? क्योंकि तुम ये no need to remember, ये remember मत करो कि a sentence that makes a statement or declaration is called assertive. Definition याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन my dear ये जरूर याद कर लीजिए, important, ये जरूर याद कीजिएगा. मैक्सिमम assertive sentence starts with subject. कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से. फॉर एग्जाम्पल मान लो एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब आ सकता है, लेकिन वो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा और एंड्स विथ फुल स्टॉप. द 2 points आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. एंड्स विथ फुल स्टॉप, स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. इसको जरूर लिख लो, ये नहीं भूलना है. देखना है किसी सेंटेंस में कि सर स्टार्ट्स विथ फुल स्टॉप एंड एंड्स विथ स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. जैसे देखो इस सेंटेंस में तन्मय, तन्मय दैट इज सब्जेक्ट, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप. तो दैट इज जहां तुम देखना, नारेशन में भी जहां तुम देखना कि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और एंड कर रहा है फुल स्टॉप से, दैट इज assertive sentence. नेक्स्ट, नाउ अगेन assertive में एक चीज और भी बहुत जरूरी है जो यू हैव टू नो, यू शुड नो द पॉइंट, दैट इज द वेरी बेसिक थिंग. assertive has 2 types. assertive भी 2 तरह का होता है. मान लो हम किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर 2 होगा. कभी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा एक्सेप्टेंस नहीं होगा. मैं खेल रहा हूं, यस एक्सेप्ट. मैं नहीं खेल रहा हूं, दैट इज निगेटिव. तो हमने क्या, ग्रामर, कोई ग्रामर हमारी नहीं है, हमने ग्रामर को बहुत इजी तुमको बनाया है. assertive बोले तो only you have to tell assertive बोले तो क्या, starts with subject ends with full stop. अब देखो ये भी 2 तरह का होता है. The first one is affirmative and second one is negative. Affirmative and negative. स्वीकारात्मक, नकारात्मक. Acceptance in a statement. It means Ramya reads a book. Tanmay is playing cricket. Our previous example. अब negative. A statement is negative. Ramya reads a book. Ramya doesn't read a book. yes काट दिया. ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे. तो क्यों यहाँ डज हो गया, क्यों यहाँ यस हो गया, यस हट गया. द वेरी वेरी सिंपल थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर प्रीवियस क्लास. लेकिन आपका प्यार, रेस्पेक्ट और लाइक शेयर आप जरूर करिए. जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए. नॉट ओनली द नवोदय स्टूडेंट्स, ओनली द स्टूडेंट्स फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय और बिहार स्टेट, क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं. यूपी स्टेट, यूपी के बच्चे भी, बिहार के बच्चे भी इससे लाभान्वित हों. एक बार है क्योंकि ये बेसिक चीज है. आप भी देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस
statement in negative means Ramya doesn't read a book. Tanmay is not playing cricket. देखो मैंने not playing cricket कर दिया. अब the question is that again मतलब इसी रूट से फिर दूसरा रूट निकल रहा है. क्यों? क्योंकि इस चीज का मैं फिर एक्सप्लेनेशन तुमको दूंगा. क्या? कि याद करो उस दिन का क्लास. अंडरस्टैंड? ज्यादा पिक्चर मत देखा करो. मम्मी पापा से मोबाइल लेकर कि मम्मी पापा मोबाइल लो, सर का क्लास मैं देख रहा हूँ, अब बैठ के इधर गेम खेल रहे हैं, ये कम करो. बाद में तुमको मालूम चलेगा कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है. मन से पढ़िए और तन से पढ़िए, खूब मन से खाइए और अपने छुट्टी को एंजॉय कीजिए. और जब पढ़ने का मन ना करे, देखो कितना मन लगता है तुम्हारा. रम्या डजंट रीड अ बुक. नाउ you see the very important point again, important rule of changing affirmative sentence to negative. कैसे किसी सेंटेंस को आप affirmative से negative चेंज करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. खासकर जो बच्चे हैं जो 5 क्लास 4 क्लास और 6 क्लास के बच्चे, उनके लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट नॉट ओनली दैट, बट आल्सो फॉर द क्लास ऑफ 9 and 10 and other competitive exam also that point is very very important. हाउ हम लोग डिस्कस करेंगे, सिर्फ याद रखना. अब देखो हेल्पिंग में एक फॉर्मूला है इसका निगेटिव बनाना. कोई सेंटेंस का निगेटिव बनाना है. दुनिया में तुमको कोई सेंटेंस दे दिया जाए कि भाई इसका निगेटिव बनाइए, ऐसे निगेटिव चीज से बचना है ना. सोसाइटी में बहुत सारे लोग निगेटिव हैं जो तुमको हमेशा निगेटिव की तरफ आकर्षित करते हैं. लेकिन आप तो वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑलवेज इनकलकेट योर लाइफ एंड सर्च द जिस्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और मैंने हमेशा एग्जांपल दिया हूं कि गुलाब का फूल देखो, रोज प्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल. When you compare the thorn and the flower, गुलाब के फूल और कांटे को कंपेयर करोगे तो किसकी संख्या ज्यादा है? कांटों की. लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? कांटा देखते हैं. कभी किसी को देखे हो कांटा लेकर कि हैप्पी बर्थडे टू यू, प्लीज कांटा लीजिए? नो वन टेक कांटा. ओनली 2 or 3 flowers are there. और वही रोज का फूल हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वैलेंटाइन डे नया आजकल आ गया है. तो वैलेंटाइन डे सब मत मनाइए और कंसेंट्रेट. अगेन यू सी कम टू द टॉपिक. थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है ना. बहुत टेंशनाइज्ड होकर पढ़ाई नहीं करना है, बहुत नॉर्मल वे में. देखो कितने इजी वे में तुम बनाओगे. तुमको दुनिया का कोई सेंटेंस दे दिया जाए और बोला जाए उसका निगेटिव बनाइए, तो हेल्पिंग वर्ब और एक्सोलरी वर्ब और मोडाल, अरे बाप सर क्या क्या चीज नाम दे दिए. एक्सोलरी वर्ब क्या है, मोडाल्स क्या है, माय डियर. इसके बाद नाइरेशन के साथ मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वर्ब. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं देखना कैसे इसको बताऊंगा. इट बिकम्स वेरी इजी. वर्ब कितने तरह के होते हैं, हम लोग सीधे स्टार्ट कर देते हैं कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब V1 V2 V3 लाइक दैट. नो माय डियर. वर्ब फाइनाइट नॉन फाइनाइट, अभी नहीं, चलो उधर फिर हम लोग फंस जाएंगे. अभी सिर्फ यू रिमेंबर कि मैं रफली इन सारे चीजों को रफली मैं बोल रहा हूं, नॉट ऑन द व्यू ऑफ द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम ओनली टेल हेल्पिंग वर्ब. अब तुम जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं जानते हो तो लिख लो. हेल्पिंग वर्ब इज, लिखते चलो, आर, एम, वाज, वर्ब, नॉट वेयर. वर्ब, वाज वर्ब. फिर लिखो हैज, हैड, had. Okay, has, have, had. Again, can, could, shall, should.
सब आप जानते हो, नहीं जानते हो लिख लो। मे, माइट, लिख लिया? लिखो फास्टली। मे माइट मिटा रहा हूं। should, ought to, do, does, did। अब देखो इसमें और भी पढ़ाने क्रम और भी ऐड किया जाता है, नीड, डेयर, लेकिन नो प्रॉब्लम। मैं फिर बोल रहा हूं कि हमको पीएचडी हेल्पिंग वर्ब में नहीं करना है और मुरेठा में लेकर नहीं रोड पे घूमना है। पीएचडी इन हेल्पिंग वर्ब माय डियर। क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपको बनाना है, हमको पीएचडी नहीं करनी है। अब देखो कितने इजी वे में, डू, डज, डिड, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने जो लिस्ट दिया माय डियर, इसी में सम आर एक्सिलरी वर्ब एंड सम आर मोडाल्स, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी मैं मोडाल तुमको 2 मिनट में बता सकता हूं, लेकिन अभी छोड़ दो, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, एकदम खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अभी कंसंट्रेट करो कि कैसे निगेटिव बनाना है। किसी भी दुनिया का कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसका निगेटिव बनाइए। तो माय फॉर्मूला इज दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन द फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। जहां हेल्पिंग वर्ब दिखा, जो मैंने अभी लिखा था,